السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں درجے کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، الحمدللہ۔ گزشتہ سال مارچ 2020 میں مرکز نظام الدین سے متعلق جو حالات پیدا ہوئے اور ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو مرکز چھوڑنا پڑا، لیکن یہ بھی میرے اللہ کا نظام ہے کہ آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور سال پورا ہونے سے پہلے میرے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے، اسباب پیدا کیے کہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دوبارہ مرکز نظام الدین لوٹ گئے، اور الحمدللہ شب برات ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب نظام الدین میں ہی تھے۔ نظام الدین کے مسجد میں ہی آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے خطاب فرمایا۔ تو ہمارے پاس میں جو اوتھینٹک میسیج ہے نظام الدین مرکز سے ریگارڈنگ، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب اور جن 50 لوگوں کو اجازت ملی تھی، وہ اوتھینٹک میسیج ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ مرکز تبلیغی جماعت بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی بموقع شب براءت 28 مارچ 2021 بذریعہ عدالت 50 صاحبان کے لیے مرکز میں عبادت و صوم و صلاۃ کی اجازت۔ الحمدللہ گزشتہ رات یعنی نصف شعبان المعظم میں 1 سال کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب مد ظلہ العالیہ نے 50 افراد پر مشتمل ذمہ داران و احباب اور تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ عبادت و دعا کا اہتمام کیا۔ نہایت رقت آمیز آپ نے دعا کی۔ دوران نصیحت آپ نے بتایا یقیناً خامیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرکز سے دور کیا، اجتماعی نظام میں بے حد تبدیلی آ گئی، ایک بڑا امتحان و آزمائش کے حالات پیدا ہوئے۔ دیکھو یہ پوائنٹ غور کرو، یہ ہمارے حضرت جی کا دل ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ نے یہ کیا یا حکومت نے ویسا کیا، نہیں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے دوستو، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو ہم نے ہمارے حضرت جی کے ملفوظات میں سیکھی ہے، اور جو روزانہ میں پورے اہتمام سے ان کے بیانات سنتا ہوں۔ جملہ کیا ہے اور ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے بتایا یقیناً اپنی خامیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرکز سے دور کیا، اپنی خامیوں کی وجہ سے۔ اپنی خامیاں یعنی ہمارے اندر ہی کچھ کمی رہی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے نصیحت کے طور پہ ہم کو مرکز سے دور کیا۔ اللہ اکبر، یہ سیکھنے کی چیز ہے، دوسروں پہ نہیں ڈالا بلکہ خود قبول کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ایسا جگر اور کلیجہ عطا فرمائے۔ خدا رب ذوالجلال سے معافی و مغفرت طلب کرے، گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کرے، عالمی وبا سے پوری انسانیت کو نجات ملے، سب مل کر رب حقیقی خالق کائنات سے امن و عافیت کی دعا کرے۔ کل گزشتہ دہلی پولیس کی طرف سے انٹری گیٹ پر دیے گئے 50 ناموں کی فہرست کے مطابق ساتھیوں کی انٹری کرا کر ناموں پر نشان لگائے گئے۔ 50 افراد مکمل ہو جانے پر داخلہ بند کیا گیا۔ دیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ 50 کی اجازت ہے نا، بس 50 لوگوں نے ہی نماز پڑھی، اور ان کے بھی باضابطہ نام دیے گئے۔ انٹری گیٹ پر پولیس کے بھی لوگ تھے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے ہمارے ان لوگوں کو جو ہماری ابھی بھی عمومی طور پر مسجدوں میں نہ ہم لوگ ماسک کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ ہینڈ سینیٹائزر کا اہتمام، اور جم گھٹے سے پورے ہجوم کے ہجوم بھرے ہوئے ہیں۔ اور میرے جیسا اگر کچھ بولنے کے لیے جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر ہے کیا؟ آپ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں لوگوں کو یہ سب باتیں بتانے کے لیے؟ لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے بڑوں نے یہ دیکھو نا، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ جہاں گورنمنٹ نے مسجدوں میں 20 لوگوں کی اجازت دی، 20 نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں 50 کی اجازت دی، 50 نے پڑھنا چاہیے۔ مجھے آپ بتاؤ نا،
मुझे आप बताओ भाई, ये मेरे दिल की बात नहीं है, हमने सीखे हमारे बड़ों से, ये हमारे बड़े सिखा रहे हैं हमको। क्या सिखा रहे हैं? जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है अपना, जोर जबरदस्ती मनमानी वाला काम नहीं। जिस मुल्क में रहते गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो। तो हमारे हजरत जी ने इस बात का खास तौर पे एहतमाम किया कि 50 अफराद मुकम्मल हो जाने पर दाखिला बंद कर दिया गया। मरकज के अकाबिरीन ने 1 साल बाद यानी गुज़िश्ता मार्च 2020 से मौजूदा माह मार्च 2021 में मरकज में दाखिल होने पर रब्बे करीम का शुक्रिया अदा किया। अजीब कैफियत तारी थी, लबों पर दुआएं, तशक्कुराना कलिमात, रब्बुल आलमीन की तारीफ और बड़ाई, आंखें नम थी। अल्लाहु अकबर। वाज़ेह रहे बड़ी बड़ी तहरीकात में बड़ी बड़ी आजमाइशें पहले भी आती रही है, बस सब्र और इत्माद अल्लाह को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। अब ये जुमले पे भी गौर कीजिए। आखिर में हम मजमून निगार का नाम भी आपको बताएंगे जिनके ज़रिए से हम तक ये मैसेज पहुंचा है, जिन्होंने ये पूरी वो कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरे दिल्ली के जमीयत के जनरल सेक्रेटरी है। अभी आगे हम बता रहे हैं, लेकिन ये जुमले पे आप गौर कीजिए कि वाज़ेह रहे बड़ी बड़ी तहरीकात में बड़ी बड़ी आजमाइशें पहले भी आती रही है। आजमाइशें तो आती रही ना भाई, अंबिया पे आजमाइशें आई, सहाबा पे आजमाइशें आई, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह सब पे आजमाइशें आती। हम जैसों पे भी आजमाइशें इसलिए आती है ताकि हम मजबूती से अपना काम कर सकें, और ये हक होने की अलामत और निशानी है। मेरे ऊपर भी जब कोई आजमाइशें आती है तो मैं तो 2 रकात शुक्राना पढ़ता हूँ और ये कहता हूँ कि अय अल्लाह, क्या तूने मेरे अमल को कबूल कर लिया? इसीलिए आजमाइश है कि कोई ये कबूलियत की निशानी है। अगर आपके साथ आजमाइशें नहीं आ रही है और आप आसानियों से कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अमल में झोल झाल है। लेकिन जहां आजमाइश आ गई और जहां आपकी मुखालिफत शुरू हो गई तो समझ जाना आपका अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो गया। तो ऐसे ही हमारे हजरत जी जो यहाँ पे इन्होंने जुमला लिखे कि बड़ी बड़ी तहरीकात में बड़ी बड़ी आजमाइशें पहली भी आती रही है। हमारे हजरत जी पे भी जो हालात आए, जो आजमाइशें, जो मरकज़ पे बहुत से लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। एक ने वॉइस क्लिप जो है ये किया था मेरे नाम से कि बोले ये अकबर हाशमी बैठे बैठे निज़ामुद्दीन की बातें करते रहता है और इसको तो पता होना चाहिए, ताला लग गया ना। ऐसे ऐसे जुमले थे उसके अंदर। मतलब जिसने निज़ामुद्दीन से ये काम सीखा और निज़ामुद्दीन के तुफ़ैल में अपनी एक पोजीशन बनाया, वो निज़ामुद्दीन पे ही तनकीद कर रहा। सेलिब्रेशन, खुशियां मनाई जा रही है, ताला लग गया ना, ये इस तरह के जुमले, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन वो ताला नहीं था मेरे भाई, वो आजमाइश थी। और बड़ी बड़ी तहरीकों में आजमाइशें आती रहती है। हमारा काम क्या है? सब्र करने का और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने का। बस अपने एतमाद अल्लाह को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। हज़रत मौलाना साद साहब ने साथियों को नसीहत फरमाई, एहतिसाब पर जोर दिया। हर शख्स को अपने मुहासेबा करना चाहिए, अपने दीगर साथियों से मुताल्लिक़ खैर व आफ़ियत की जानकारी भी हासिल करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, क्या कलेजा है यार इस इंसान का। ये क्या है, क्या ये जुमले? अपना खुद का एहतिसाब करो, हमारे से क्या कमज़ोरी हो रही ये मत देखते बैठो। ये हमारे हज़रत जी की तालीम है। खुद का मुहासेबा करने का हमको हुक्म दिया, और ये भी कि हमारे भाई दीगर जो काम करने वाले साथी है, लॉकडाउन की वजह से, हालात की वजह से उनके कारोबार का क्या हाल चाल है, उनकी दीगर ज़रूरियात का क्या हाल चाल है। क्योंकि उमूमन ये चीज़ होती है। मैंने ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर सुना था। सामने हमारे मौलाना पुरानों की मजलिस में फरमा रहे थे, बोले हम लोग एक साथी को मिलने के लिए गए, उसकी तश्कील के लिए। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं। उसने हमको बिठाया, इकराम किया, चाय वाय पिलाया और बोलने लगा, मौलाना बुरा मत मानना, बोले यार एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को। बोले यार हम लोग जब बुरे हालात में रहते तब आते नहीं, बोले यार तुम खाली तश्कील के लिए आते क्या? अब 4 महीने का तकाजा है, फलाने टाइम पे चिल्ले का तकाजा है। यार कुछ हालात में भी कभी तुमको मालूम है बीच में मैं किन हालात से गुजरा था, कभी हमारे बुरे हालात की भी जानकारी ले लिया करो। ये मौलाना ने खुद पुरानों की मजलिस में ये जुमले फरमाए थे। उसके बाद मौलाना फरमाते थे, बोले देखो भाई हमारे साथियों के हालात को भी हमने देखना चाहिए। अभी हमारे हजरत जी ने जो लिखा है कि हर शख्स अपना मुहासेबा करना चाहिए और दीगर साथियों से मुताल्लिक़ खैर व आफ़ियत की जानकारी भी हासिल करना चाहिए। और ख़ुद आपने भी हासिल की कि भाई अपने साथी कैसे हैं,
साथियों के कामकाज का कैसा चल रहा है, तबीयतों के क्या हाल चाल है, ये जिम्मेदारी है हमारी। अल्लाह हमारे अंदर भी ये सिफात पैदा फरमाए। उसके बाद सहरी का भी एहतमाम था, यानी वहाँ पे सहर जो है उसका भी माशाअल्लाह निज़ामुद्दीन में एहतमाम था। साथियों ने अगले दिन जो रोज़ा रखे, नमाज फज्र के बाद सभी साथी मरकज से रुखसत हो गए। इस रूहानी, ईमानी, दावती, अखलाकी, मजहबी मरकज़ की रौनक को जल्द बहाल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा दहली व मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामी हिंद, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन अल जज़ा। हज़रत मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके जैसे एक मुअतमद और मुअतबर इंसान का लिखा हुआ ये मज़मून मुझ तक पहुँचा और मैं उसको अपनी आवाज़ में लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा सूबा दहली के और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामी हिंद भी है उनकी, तो इतने मुअतबर इंसान ने ये सारी बातें हम तक पहुँचाई है। तो पहले हमने उनका शुक्रिया अदा किए। साथ में अब हम हमारे तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग, हमारे हज़रत जी ने का जो अभी अमल था, हम भी उस पर अमल करने वाले बने और दो रकात शुक्राना मरकज़ के दोबारा खुलने के शुक्रिया में हम अदा करें कि अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम हुआ। वो लोग जो सेलिब्रेशन और जश्न मना रहे थे, ताला लग गया ना, अल्लाह ने उनके मुंह पे जिल्लत का जूता रसीद किया है और उस ताले को खुलवा दिया है। अच्छा, ये जो मसला है 50 लोगों का, एक्चुअल ये टेक्निकल मसला है। टेक्निकल मतलब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में जो स्कूल खोलने की इजाज़त मिली थी, गवर्नमेंट ने उनको भी बंद करा दिया। महाराष्ट्र में स्कूल खुल गए थे, वापस बंद हो गए। क्यों? केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में लॉकडाउन लग गया, पूरे मुल्क में कई जगहों पे अभी लॉकडाउन है। खुद हमारे अपने शहर में मगरिब के फ़ौरन बाद में लॉकडाउन लग जाता है, दुकानें बंद कर दी जाती है सुबह में फजर के बाद तक। रात का तो ऑलरेडी लग गया है और बताया गया है कि एक हफ्ते तक हालात देखेंगे, सही रहे तो ठीक, नहीं तो दिन के भी लॉकडाउन का सोचेंगे। अल्लाह आफियत का मुआमला फरमाए। तो इस वजह से अभी 50 लोग, अगर केसेस ख़त्म हो जाते या कम हो जाते थे तो ज़्यादा लोगों की इजाज़त मिलती थी। बहरहाल अभी 50 की मिली है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। हम सिर्फ ये दुआ करें कि केसेस कम से कम हो जाए। जितने ज़्यादा केसेस कम होंगे उतना ज़्यादा हमारे मस्जिदों में और इबादतों में हमको सहूलत मिलेंगी। ऐसे ही मेरे पास हज़रत जी का ख़त भी पहुँचा हुआ है रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़। तो इंशाअल्लाह अभी ये अपलोड होने के बाद उसको भी मैं रिकॉर्ड करके आप तमाम लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि हमारे हर साथी तक हमारे हज़रत जी का ये मैसेज पहुंचे कि दाई का रमज़ान कैसे गुजरना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सलामु अलैकुम। अच्छा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो। पिछले 2-3 दिन से ज़रा मेरी भी तबीयत में बशाशत नहीं है, गर्मी की शिद्दत से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अल्लाह आफियत का मुआमला फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।